Everyone, my name is Prerna and our today's topic is physical properties of metals and non-metals. Okay, so this is our periodic table. I told you in my previous video that all the elements present on the earth are arranged in a certain groups and periods according to their properties, and this is the periodic table in which all the elements are arranged. So from number 1 to 118, these are all the elements that are arranged according to their physical properties and chemical properties. Okay, and in this chapter we'll see the physical properties of metals and non-metals. Okay, if you will see this periodic table, then most of the elements present in this table are metals and some are non-metals. So the elements present on the left side, if we will see, these are metals and some of the elements are non-metals and very few are metalloids. Okay, so we'll see the physical properties of metals and non-metals. So first property is hardness. As we all know that metals are hard and non-metals are soft. If you will see the example of iron, steel, copper, okay, these all metals are hard. And if you will see the examples of non-metals, I'll say coal, wood, these are soft. Okay, so we can conclude that metals are hard and non-metals are soft. Okay, next property is luster. Luster का मतलब होता है shine, चमक. Okay, so we know that the surface of the metals are shiny. मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनी अपीयरेंस देता है हमको. आप कोई भी नया मेटल आप खरीद के लाते हो तो आप देखोगे कि उसमें चमक होती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन ले लो, आयरन का सरफेस दैट विल बी शाइनिंग. या फिर आप कोई ज्वेलरी खरीद के लाते हो, ज्वेलरी किसकी बनी होती है? मेटल की बनी हुई होती है. वाई इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल? बिकॉज इट इज़ हार्ड एंड इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस. ओके, एंड इफ यू विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स like wood, coal, then they have a dull appearance. They are not lustrous. Okay, so we can say that metals are lustrous. Lustrous means shiny, and non-metals are non-lustrous means they are not shiny, they are dull. Next property is malleability. Okay, see, this is the property of metals, because in this property what is happen, the process in which a thing, an element can be beaten into thin sheets by hammering या फिर by beating. ठीक है, किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को अगर हम बीट करके, हैमर करके उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी. और आपने मेटल की थिन शीट्स देखी होंगी, टिन शीट्स देखी होंगी, आपने आयरन शीट्स देखी होंगी, और आपके सबके घरों में एल्यूमिनियम फॉयल्स होती है. एल्यूमिनियम इज़ ऑल्सो अ मेटल. तो वो मेटल, एल्यूमिनियम मेटल की शीट्स हैं, फॉयल्स हैं. ठीक है, तो क्या होता है जब हम मेटल्स को बीट अप करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो मेटल्स जो हैं वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं मेटल्स आर मेलिएबल. और अगर हम बात करें वुड की या फिर कोल की, कोई भी नॉन मेटल की आप बात करोगे, प्लास्टिक कुछ भी ले सकते हो आप, तो अगर आप सपोज वुड की बात कर रही हो या कोयले की बात कर रही हो, आप उसको हैमर करोगे तो वो क्या होगा, पाउडर सब्सटेंस में या पीसीज में टूट जाएगा. इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, राइट. सो non-metals are not malleable. Okay, so we can say that metals are malleable and non-metals are non-malleable, or we can say that metals can be beaten into thin sheets but non-metals cannot be beaten into thin sheets, right. Next property is conduction. Conduction क्या होता है? See, I told you in the my previous video of heat transfer. Conduction is a process of heat transfer और electricity transfer. Okay, तो कुछ materials ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से heat या electricity को transfer होने देते हैं. ठीक है, उन materials को हम बोलते हैं conductors, या फिर हम बोल सकते हैं they have a good conduction power, right. और कुछ materials होते हैं जो अपने अंदर से heat या electricity को transfer नहीं होने देते, उनको हम बोलते हैं
पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स। ओके, सो उस वीडियो में भी हमने देखा था कि जैसे मेटल्स होते हैं, आपके जो यूटेंसिल हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है। आपकी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं, कॉपर की, सिल्वर की। वाई? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम दूसरी जगह पे देखें, अब जैसे आपकी जो वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर एक कोटिंग होती है, दैट इज़ ऑफ प्लास्टिक, राइट। और अगर हम यूटेंसिल्स की बात लें तो यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं दैट आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ताकि हम जब उन चीज़ों को हैंडल करें, हम इलेक्ट्रिक वायर को हैंडल करें या फिर यूटेंसिल को हैंडल करें, तो हमें हीट ना लगे। आप देखोगे यूटेंसिल के अंदर जो हैंडल होता है वो गर्म नहीं होता कभी भी, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। एंड प्लास्टिक डू नॉट गेट्स हीट अप बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर, और वी कैन से इट इज़ एन इंसुलेटर। सो मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? दीज आर गुड कंडक्टर्स। एंड नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? दीज आर पुअर कंडक्टर्स और insulators. Okay, next property is ductility. It is the property by which an element can be drawn into thin wires. Okay, कोई एलिमेंट जब उसको ड्रॉन करके, मतलब कि ऐसे ड्रॉन का मतलब खींचना, ठीक है, अगर उसको वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, तो हम उस एलिमेंट को बोलेंगे दैट इट इज़ डक्टाइल, ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जो वायर्स में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे आपने कॉपर की वायर्स देखी होंगी, सिल्वर की वायर्स देखी होंगी, गोल्ड की भी वायर्स देखी होंगी, ठीक है। एंड ऑल दीज आर मेटल्स, ठीक है। तो वी कैन से दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, बट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। आपने कभी भी किसी नॉन मेटल की वायर नहीं देखी होगी। एंड यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स, नॉन मेटल्स आर गैसेस। ओके, तो गैसेस के तो हम वायर नहीं बना सकते ना। ओके, सो metals can be drawn into thin wires but non-metals cannot, or we can say that metals are ductile and non-metals are not ductile. Okay, next physical property is sonority. Sonority or sonorous means producing sound, producing ringing sound. आपने मंदिर के अंदर बेल देखी होगी, घंटी जो होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ मेटल। क्या हम उसे प्लास्टिक का या वुड का बना सकते हैं? अगर आपके जो मंदिर में बेल है वो प्लास्टिक की या वुड की होगी, तो क्या उसके अंदर से जो रिंगिंग साउंड आती है जब हम उसको बजाते हैं तो वो साउंड आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली मेटल्स। मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, और वी कैन से दैट मेटल्स आर सोनोरस, बट नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, सो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस. I hope this has been clear to you. These all are the physical properties. Physical properties वो होती हैं जो हम उनकी appearance से, उनकी states of matter से define कर सकते हैं. Okay, हम देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट है या कोई भी मेटल या नॉन मेटल है वो किस तरह से कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज़. सो दैट्स ऑल फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. सो सी, I told you about the physical properties of metals and non-metals, but there are some exceptions. Like I told you, metals are hard. Metals hard होते हैं, but there are some exceptions. If you will see sodium and potassium, both are metals, but they are not hard. They are so soft that they can easily be cut with a knife. अगर आप आयरन का एग्जाम्पल लोगे तो आयरन को आप चाकू से नहीं काट सकते हो, राइट, बिकॉज इट इज़ हार्ड. ऑल द मेटल्स आर हार्ड, बट देयर आर some metals that are soft, and these are sodium and potassium. These are the soft metal and they can easily be cut with a knife. और दूसरी बात क्या है, ये मेटल्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं कि हम इनको हवा में नहीं रख सकते हैं, मतलब एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं ला सकते हैं. और इवन दे रिएक्ट विद वाटर ऑल्सो, ठीक है, पानी के साथ भी ये रिएक्ट कर जाते हैं. तो हम सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स को रखेंगे कहाँ? इफ़ दे आर सो मच रिएक्टिव विद एयर, तो हम क्या करते हैं इनको, जैसे हमारा वो होता है कॉटन होता है, कॉटन के अंदर रैप करके रख सकते हैं, या फिर हम इनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, सो दैट दे विल नॉट come in contact with water and air. Okay, next exception is mercury. Mercury is also not hard because it is liquid at room temperature,
mercury is the only metal that is liquid, right? All the metals are solids, but mercury is liquid at room temperature. Okay, next एक्सेप्शन की हम बात करेंगे डायमंड. सी डायमंड इज़ अ नॉन मेटल. आपने कार्बन सुना होगा, कार्बन से ही कोल बनता है, आपका कोक बनता है, ठीक है. डायमंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ carbon, and carbon is a non metal. Okay, and I told you that non metals are soft. ओके, सॉफ्ट होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है. बट डायमंड इज़ द एक्सेप्शन. डायमंड इज़ द ओनली नॉन मेटल दैट इज़ हार्ड, एंड दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. ओके, डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड होता है. नेक्स्ट एक्सेप्शन इज़ आई टोल्ड यू दैट नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड एंड गैसियस. ठीक है, या तो वो सॉलिड होते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस. ओके, कुछ जो हैं वो सॉलिड्स हैं. ओके, बट देयर इज़ वन नॉन मेटल दैट इज़ लिक्विड, दैट इज़ bromine. Okay, bromine is a non-metal, is the only non-metal that is liquid. Okay, next is non-metals are poor conductors. I told you in my previous slide that metals are good conductors of heat and electricity, but non-metals are poor conductors. So here also there is an exception, that is graphite. See, graphite is also a form of carbon. Carbon is found in two forms in nature, that is diamond and graphite. Okay, so both are having some exception, like diamond is the hardest substance, it is a non-metal, still it is hard. And graphite is a non-metal, still it is good conductor of electricity. Okay, so this is the exception, that graphite is good conductor of electricity. आपने जब एक पेंसिल सेल देखा होगा, रिमोट में हम सेल डालते हैं, काफ़ी जगह पे हम क्लॉक्स में हम सेल का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर आपने कभी किसी ख़राब सेल को खोल कर देखा होगा, तो उसके अंदर बिल्कुल बीच में एक ब्लैक कलर की रोड होती है, दैट इज़ ग्रेफाइट. ओके, एंड बिकॉज इट इज़ यूज इन द सेल, और सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम होता है. सो वी कैन कंक्लूड दैट graphite is a good conductor of electricity. I hope all these physical properties have been clear to you. That's all for today. Thank you.